Hello students, welcome to the GATE Academy. So in this video we are going to discuss about a very good opportunity that we get from a GATE exam, and that is NITI Mumbai. So let's discuss about this institute. Okay, so what is NITI Mumbai? NITI Mumbai is a National Institute of Training in Industrial Engineering. Okay, so आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मीन्स यहाँ पर इंडस्ट्रीज एंड मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टडीज होने वाली है. ओके, मतलब आपको यहाँ पर प्योर टेक्निकल ना जाते हुए आपको यहाँ पर टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट सिखाया जाएगा. ओके, टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट. So technical, already you are having a knowledge of technical through a GATE exam, you have prepared and you have done a BTech. Now you are going to learn some of the management skills in this institute. Okay, so generally what happens in your third year of graduation or fourth year of graduation, generally students confuse होते हैं between CAT and GATE. मतलब कि उन्हें MBA करना है, या तो उन्हें MBA करना होगा या फिर उन्हें MTech करना होगा, और सम जॉब्स. अगर हायर एजुकेशन की बात करें सो दीज आर द टू लाइंस दैट वी कैन, और अब्रॉड की बात करें तो MS भी जा सकते हैं. बट जनरली दे गेट कंफ्यूज बिटवीन MBA एंड MTech. ओके, सो इन इंडिया ओनली आई एम टॉकिंग. सो MBA और MTech में उन्हें डिसीजन लेना है. सो फॉर MBA दे हैव टू गिव दिस एग्जाम दैट इज CAT, एंड फॉर MTech दे हैव टू गिव दिस एग्जाम दैट इज GATE. Okay, so some students do preparation for both the exams simultaneously. Some do individually for CAT exam and some do for GATE exam. Okay, so आप डिसीजन लेते हैं. सपोज कि आपने GATE एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, यू वांट टू गो फॉर MTech एंड टेक्निकल पार्ट. ओके, सो आपने GATE एग्जाम दिया, आपका अच्छा स्कोर आया. नाउ लेटर यू रियलाइज आफ्टर giving a GATE exam and getting the in the counseling time, you get to realize that you want to get the admission in this college, means you want to change your field from technical to management. You think that you can be a good manager. Okay, so आप सोचते हो कि टेक्निकल में ना जाते हुए मैं टेक्नो प्लस मैनेजमेंट में जाना चाहूँगा. सो टेक्नो मैनेजमेंट जिसे हम बोल सकते हैं. सो आपको उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है. मतलब आप गेट एग्जाम के सिलेक्शन, मतलब गेट एग्जाम देने के बाद भी आप अपना लाइन चेंज कर सकते हैं. अर्लियर क्या आप करते थे कि आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपको बाद में रियलाइज हुआ कि आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, तो आपको फिर से गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करके फिर MBA करना होगा किसी IIM से. ओके, सो यही चीज आपको ना करते हुए आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली अपनी लाइन चेंज कर सकते हो फ्रॉम if you want to go for a management. So this is a really very good opportunity. Okay, ये आपको लास्ट टाइम पर भी अपना फील्ड चेंज करने का एक अपॉर्चुनिटी देता है. So it is really good. So let's talk about this. It was established in 1963 by Vikram Sarabhai. Okay, and its ranking is very good. Its ranking is 8th ranking. Okay, and this is the 8th ranking all India rank in government category. Means if we talk about the government colleges, it's 8th rank. It is having a 8th rank, and it is having a 11th rank overall, 11th rank in India. Okay, all the colleges including private and government, it is having a 11th rank. So it's really a good ranking. So let's talk about some courses that NITI Mumbai offer to students through GATE exam. Okay, so let's discuss. So students, courses offered through GATE exam are these three courses. Okay, so let me tell you first that this institute does not only offer these three courses, it offers total 7 courses, and it also takes the admission through CAT exam and GMAT. But we are only discussing about the admission through GATE exam, and through GATE exam you will be only offered these 3 courses. Okay, these 3 programs we can say. So remaining 4 are getting
थ्रू अ डिफरेंट एग्जाम्स दैट इज केट और जीमेट. ओके, सो बाकी के जो 4 कोर्सेज है वो आपके केट के थ्रू या जीमेट के थ्रू एडमिशन लेते हैं. हमें सिर्फ गेट के थ्रू की बात करना है. सो आप देखिए वन बाय वन, लेट्स डिस्कस. सो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ओके, PGDIE. This is very popular course in this college because it takes the admission from all the branches. So इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो ऑल स्ट्रीम हम बोल सकते हैं. मतलब आपकी स्ट्रीम कोई भी है, आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं. एंड द गुड थिंग अबाउट दिस प्रोग्राम इज इट्स हैविंग अ नंबर ऑफ सीट्स. जो सीट्स इसकी है, नंबर ऑफ सीट्स दैट इज 144 अराउंड. ओके, so this is some approximate data, but it is 140. Okay, we can correct it. 140 seats are there for this program, and it is a good number. Okay, so there are high chances of getting selection for this PGDIE. Now next, if we see, there is postgraduate diploma in manufacturing management. So it should be MM, PGDIE MM. Okay, PGDMM. Okay, manufacturing management. Let's correct it. So manufacturing management, it does not allow all the streams. Some of the streams are allowed. Okay, so you can know it later. So eligibility criteria, because there are many streams that they are offering through GATE exam. So not all the streams are allowed, that much we can say. And in these also, in project management also, not all the streams are allowed. Okay, not all the streams are allowed. Not all streams are allowed. Okay, so that's why this comes later and this comes first. It is having a higher priority. Okay, seats are also very less in this program, that is 44, and in this program also seats are very less, that is 44. Okay, so definitely out of these 3 programs, first I will give the preference to this program, and then manufacturing, and then project management. Project management, because in manufacturing I think this is much because there are lot of common subjects in these courses. There is very slight difference in these 3 programs. Okay, there is not a huge difference. So after a lot of research, I got to know that all the 3 programs focuses on supply chain management. Supply chain management. All the programs mainly focus on supply chain management. Okay, so this should be sequence, I think. And one more thing is, if you want to know what will be cut off through the GATE exam, that we will discuss in the later part. Okay. So now let's talk about the admission process. Okay, so admissions are done through GATE, through a GDPI, that is group discussion, and personal interview with the appropriate weightage of GATE and CAT score. Okay, so let me tell you the criteria, means what they take. So generally what happens कि आपने GATE exam दिया, आपका अच्छा स्कोर आया, आपको कॉल आएगा कॉलेज से, ठीक है, फॉर अ ग्रुप डिस्कशन इन पर्सनल इंटरव्यू. सो इनका सबका उन्होंने वेटेज डिसाइड करके रखा है. ठीक है, सो वेटेज क्या है देखो. For a CAT and GATE score, they have decided a 35% weightage. Okay, so इस स्कोर का 35% weightage होगा. ग्रुप डिस्कशन का उन्होंने weightage डिसाइड करके रखा है, that is 15%. Okay, and for PI, that is personal interview, the weightage is 30%. So now how much is covered? Total that is 45 plus 35, that is 80% is covered now. Now remaining 20% comes in academic record. So next one is what? Having work experience and good academic record is always a bonus. Okay, so this is the portion where your academic record will matter a lot. Okay, so in academic record you are having 10th exam, 12th board and BTech. Okay, so let's talk about this. 10th exam is having a 5%. This is also having a 5% weightage, and BTech is having a 10% weightage. Okay, so this is how your 100% will cover. So this is the criteria of selection. They score it like this. Okay, so GATE and CAT is having a huge portion, GDPI is having a high weightage, and these are having a lesser weightage. So even if you are having a less marks in 10th and 12th,
it is okay, but if you are having a work experience, that will be a bonus at that time. Okay, so you should be able to explain your work experience very clearly. It should be justifiable that what you have learned in your when you were in job. Okay, so this is how the selection process goes on. So let's talk. They particularly focus on management skills of candidates. So in this interview आप देखिए एमटेक के लिए जब IITs में इंटरव्यू देते हैं, या फिर आप जब IISc बेंगलोर या इस तरह से जब आप इंटरव्यू देते हैं, PSUs में आप इंटरव्यू देते हैं, तो वहां पर हार्डकोर टेक्निकल इंटरव्यू होता है. ठीक है, वहां पर आपका टेक्निकल स्किल्स, आपके सोचने की क्षमता कैसे है, ये सब देखा जाता है रिगार्डिंग टेक्निकल एप्टीट्यूड कैसा है आपका. और यहाँ पर आपका मैनेजमेंट स्किल्स देखी जाएगी कैंडिडेट्स की, कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स कैसी है. दे नो दैट यू आर हैविंग अ गुड टेक्निकल बिकॉज यू आर क्लियरिंग अ गेट एग्जाम एंड यू आर डन अ बीटेक. ओके, सो आपका टेक्निकल अच्छा है, दे नो. ओके, तो जो सफिशिएंट नॉलेज टेक्निकल के लिए चाहिए था वो आपके पास है. अब वो आप जिससे जानना चाहते हैं आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स कैसी है, तो आपको वो इंटरव्यू में क्या करेंगे, मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ. ओके, सो इन डिफरेंट वीडियो वी कैन डिस्कस अबाउट द GDPI ऑल्सो इन डेप्थ. Okay, by taking the real examples. Okay, so example is here. They can give you a present scenario, current scenario. They can give you some examples like when recession was going on in 2007 and 2008. तो आपको ये बोल दिया जाएगा, वहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि जब ये रिसेशन हुआ था तो क्या रीजंस थे, what was the reasons, tell me, and what are the points that you can do. तो ये रिसेशन नेक्स्ट टाइम वापस से ना आए, तो आप ऐसी क्या चीजें ध्यान में रखोगे कि इस तरह का रिसेशन वापस से ना आए कभी. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं. तो आपको ये प्रॉपर जो कॉमन टॉपिक्स है इन पे प्रिपेयर रहना होगा. आपकी मैनेजमेंट स्किल्स जानी जाएगी. डेफिनेटली आप एकदम टू द पॉइंट आंसर नहीं दोगे, लेकिन आपकी कोशिश, आप कितना कोशिश कर रहे हो वहां पर, और आप कितना रिलेवेंट उस टॉपिक से हो पा रहे हो, दैट विल बी चेक इन द पर्सनल इंटरव्यू. ओके, सो नाउ let's talk about the next part. Okay, important dates. So this is very small part, it is not that much important, but you should know, means if you want to prepare for group discussion and personal interview, so you should know when you have to start preparation for a group discussion and personal interview. Okay, so here important dates are: the application begins at 6th February, means this is for 2020. तो जो 21 और 22 के लिए हम एक आइडिया ले सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है एंड इट क्लोजेस अराउंड 1st of April. ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू आपका जो होगा दैट विल बी 22-24. सो इन दिस 2020 द ग्रुप डिस्कशन वॉज नॉट डन एंड ओनली पर्सनल इंटरव्यू वॉज डन थ्रू अ वीडियो कॉल बिकॉज ऑफ COVID-19 सिनेरियो. Group discussion was not done, only personal interview was done in 2020, but in 21 both will be done. Okay, so and course begins in June 2020. so जून में आपका कोर्स शुरू हो जाता है. Okay, so इस तरह से आपका ये होता है important dates. So let's talk about the fees estimation, and this is really an important part now. So generally students think that it is very good institute and it is having a गुड पैकेज ऑल्सो. ओके, दैट विल डिस्कस लेटर. सो फीस की भी बात की जाए तो IIMs IITs की भी फीस होती है. ठीक है, IIMs की फीस बहुत ज़्यादा होती है अगर आप वहाँ पे MBA करने जाते हैं. सो एज कम्पेयर टू IIMs इसकी फीस इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन IITs के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है. ठीक है, सो आपकी जो इसकी फीस है एंड दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कोर्सेज. ओके, लेट्स डिस्कस. तो अगर आप गेट के थ्रू जाते हो ओके, सो गेट के थ्रू आपका जो 3 प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं विच इज PGDIE, PGDMM एंड PGDPM. okay, these are the 3 courses. For all these 3 courses its total fees is 12,53,000. currently this much is given, okay, as a fee structure in the website. So this is the exact amount and this includes everything. Okay, your hostel fees and everything, your mess fees and everything. Okay, library and all that. So this is the fees. If you go through a CAT exam, its fees will be 14,53,
14,53,000, and that is for two different courses, PGDIM, that is industrial management, and one more course is there. Okay, so for that courses the fees is this much. अब now आप सोचोगे कि सर फीस तो इतनी ज्यादा है, ओके, हाउ आई विल पे, सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस. ओके, इंस्टीट्यूट में ही अंदर बहुत सारे बैंक के स्टॉल्स लगते हैं, स्टॉल्स लगते हैं, और ये स्टॉल्स आपको इजीली एजुकेशन लोन दे देगा. ठीक है, एजुकेशन लोन आपको बहुत आसानी से मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने वाले हो. ओके, सो एजुकेशन लोन बहुत ही इजीली आपका सैंक्शन हो जाता है यहाँ से. ओके, नाउ यू विल थिंक कि एजुकेशन लोन इतने बड़े अमाउंट के लिए वापस से आप इसको रिकवर कर पाओगे कि नहीं, ओके, रिटर्न कर पाओगे कि नहीं, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो देखिए, दैट विल डिस्कस इन प्लेसमेंट पार्ट. आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पर. मतलब आप अगर इतना इन्वेस्ट करते हो आपके कोर्स में, आप इसको 1 या 2 साल में वापस रिकवर करोगे. ठीक है, सो दैट मच इज पार्ट. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड न्यूज फॉर गेट स्टूडेंट्स, दैट they will get a stipend of 12,400 per month only for GATE students. Okay, not for CAT. So अगर आप GATE के थ्रू एडमिशंस लेते हो तो आपका 12,400 आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ, एंड दैट इज रियली गुड. ओके, सो आई थिंक दिस इज गुड थिंग कि आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाएगा आसानी से फॉर दिस मच अमाउंट, एंड आप उसको रिकवर भी कर सकते हो बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड हियर. ओके, so now let's talk about the placements. Okay, so now we are going to discuss about the placements. So you can see the data, it's really very beautiful. Okay, तो आप इतना सोचो, आपने कभी इतना सोचा भी नहीं होगा कि इतना पैकेज होता भी है, एग्जिस्ट करता भी है. ठीक है, सो यू कैन सी द डेटा हियर, कि ये जो ब्लू लाइन्स है दैट इज फॉर एवरेज सैलरी एंड दिस इज फॉर द मैक्सिमम सैलरी. तो आप देखिए, जनरली जो रिक्रूटर्स आते हैं वो आते हैं कंसल्टिंग से, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से, FMCG से, ठीक है, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मा एंड हेल्थ केयर से भी आते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मैक्सिमम पैकेज आज तक गया है यहाँ पर दैट इज 58.2, एंड दैट इज रियली वेरी गुड नंबर. ओके, अगर आप एवरेज हाईएस्ट पैकेज देखना चाहेंगे तो एवरेज हाईएस्ट पैकेज इज 26.5 एंड इट इज नॉट लेस. ओके, एंड अगर आप मिनिमम एवरेज पैकेज देखेंगे तो दैट इज 17.2, आई थिंक, या करेक्ट. So 17.2 is a minimum average package and that is also a very good number. ठीक है, मतलब आपको पर ईयर 17.2 lakhs मिलने वाला है. ओके, सो दिस इज हाउ इट्स प्लेसमेंट इज. मतलब अगर आप प्लेसमेंट में पैकेजेस की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा पैकेज देता है, एंड दिस पैकेज इज रियली कंपेरेबल विद द IIMs. इतना पैकेज आपको IITs में नहीं मिलने वाला है. ओके, सो आप यहाँ पर मैनेजमेंट करने वाले, मतलब आपको इतना पैकेज मिल रहा है, मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अच्छी दी जाएगी. मतलब आपके पास पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उसके इकोनॉमिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास हो सकती है. ठीक है, सो पूरा कंपनी आप पर डिपेंड कर सकता है, आप पर एक पूरा प्रोजेक्ट डिपेंड कर सकता है. ओके, इतना पैकेज में. सो आप सोचो कि ये 2 साल में आप कितना कुछ लर्न करने वाले हो यहाँ पर, तभी आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है वहाँ पर. ओके, सो आप सोच सकते हो इससे. अब देखिए तो नेक्स्ट इज अ वेरी यूनिक डेटा, that is placement snapshot. See here, I will tell you one unique thing about this institute, and that is this pre-placement offers. Okay, इसको हम बोलते हैं PPO in short. So जो PPO है यहाँ पर आपके प्री प्लेसमेंट ऑफर्स हैं वो इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, सो इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड है इस कॉलेज में, उसने मुझे बताया भी है कि एक रोल को इन्होंने एक नाम ही दे दिया है, दैट इज प्री प्लेसमेंट ऑफर, PPO रोल. ओके, क्योंकि वहां पर PPO मतलब प्री प्लेसमेंट बहुत ज्यादा होता है. अब ये प्री प्लेसमेंट ऑफर्स है क्या? देखिए, जब आप इंटर्नशिप करते हो 3rd सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर में, आप जब इंटर्नशिप करते हो तो इंटर्नशिप में ही आपको इंडस्ट्री से रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, और आपको बोल दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट पूरा आपका है, जो भी डिसीजन होंगे आपके होंगे, और अगर आप
उस इंटर्नशिप को बहुत अच्छे से करते हो तो आपको वो कंपनी उसी टाइम आपको प्लेसमेंट दे देती है। तो ब्यूटीफुल थिंग इज दैट कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ाई भी कर रहे होंगे और आपके हाथ में जॉब भी होगी, ठीक है, एंड दैट इज वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पर पीपीओस के नंबर बहुत ज्यादा है। अगर आप डेटा देखें तो 106 वॉज डन इन प्रीवियस ईयर, ओके, मतलब 2019 में 106 पीपीओ हुए थे प्लेसमेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स का अगर मैं डेटा देखूं तो 480 to 500 सीट्स है शायद इस कॉलेज में टोटल अप्रोक्सीमेटली, आउट ऑफ विच अभी जो पीपीओ हो चुके हैं ये फाइनल जो प्लेसमेंट होता है फाइनल ईयर में उसमें नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो जो फाइनल ईयर पे प्लेसमेंट हुए वो 384 हुए। तो टोटल अगर आप देखें तो इट इज समथिंग 490, ठीक है, 490 स्टूडेंट्स आर गॉट प्लेस्ड एंड आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 490 स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड विद दिस ब्यूटीफुल पैकेज, ओके। सो आप सोच सकते हो कि आपका जो लोन आपने लिया है एजुकेशन लोन उसको आप इजीली रिटर्न करोगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड हियर, ओके। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट द एजुकेशन लोन, आई गेस। सो यहां पर आप बोल सकते हो कि 90 to 100% प्लेसमेंट गारंटी इज देयर, 90 to 100 प्लेसमेंट पर 100% गारंटी इज देयर। अब एक और बहुत अच्छा डेटा है यहाँ पर कि आपका जो टॉप 50 स्टूडेंट्स होते हैं रैंकिंग में, अगर आपके उस कॉलेज की कोई रैंकिंग होगी स्टूडेंट्स की, इसमें 500 स्टूडेंट्स में से अगर टॉप 50 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप 50 स्टूडेंट्स का जो एवरेज पैकेज है, टॉप 50 स्टूडेंट्स का जो एवरेज पैकेज है दैट इज समथिंग 27 LPA अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। मतलब कि जो टॉप 50 स्टूडेंट्स उनका एवरेज पैकेज 27 LPA एंड दिस इज रियली अ वेरी गुड नंबर, ओके। सो आई थिंक दिस इज अ मोटिवेशनल फॉर यू कि आप फाइनेंशियली इतना साउंड होंगे बाद में जब आप इस इंस्टीट्यूट से निकल कर जाओगे और आपको ये 2 साल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट कि यहाँ पर आपको रियल लाइफ एक्सपोजर प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से दिए जाते हैं, मतलब कि वीकेंड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। वीकेंड प्रोजेक्ट्स में आपको रियल लाइफ एक्सपोजर मिलता है, मतलब आपको रियल सिनेरियोज को कैसे हैंडल करना है वो मिलता है आपको। आपको क्लासेस में भी किसी बुक्स वगैरह से पर्टिकुलरली नहीं पढ़ना होगा, आपको वहां पर भी प्रोफेसर्स रियल सिनेरियोज को लेते हुए आपको स्टडी करवाएंगे, ठीक है ना। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मॉडर्न स्टडी, मॉडर्न टीचिंग वी कैन से, okay. So this was about the placements. Let's talk about the recruiters. So these are the prominent recruiters, okay. Very big companies we can see General Electrics, okay, General Electrics, Ola, Uber and lot of companies are there. So generally we can see that कि जो recruiters आते हैं यहाँ पर वो किस एरिया से आते हैं, वो आते हैं आपके कंसल्टिंग से, ठीक है, आपके आते हैं वो FM CG से, आपके आते हैं वो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से BFSI, आपके वो आते हैं रिटेल एंड ई कॉमर्स से। जनरली ये जो सेक्टर्स है यहाँ से आपके रिक्रूटर्स बिलोंग करते हैं इस कंपनी में जो आते हैं, ठीक है। एक्सिस बैंक भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ICICI बैंक भी देख सकते हो, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट प्लेस्ड इन एक्सिस बैंक, ओके, विद अ वेरी गुड पैकेज। So this is really very motivational. I think you should give a try for this institute, okay. So you have to prepare for GATE exam and you have to score very well. तो जब आपके पास एक अच्छा स्कोर होगा ना, मतलब मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया, तो आपका जो 700 स्कोर से ऊपर अगर आपका है, 700 स्कोर से ऊपर है अगर आपका गेट स्कोर, तो आप यहाँ पर अप्लाई करने का सोच सकते हो। मतलब यू माइट कैन गेट अ कॉल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर अ GDPA। तो आपका अगर स्कोर गेट स्कोर सपोज 780 है, तो अगर 780 है तो आपके पास बहुत अच्छे चांसेस है, आपके पास PSUs है, आपके पास IIT से जाने के लिए आपके पास नीति मुंबई है। तो PSUs डेफिनेटली एक अच्छी चीज है, गवर्नमेंट जॉब है, सिक्योरिटी है। नीति मुंबई इज गुड, आपको हायर एजुकेशन करना पड़ेगा। जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि जब मुझे जॉब मिल रहा है, जब मुझे PSU मिल रहा है, तो मैं 2 साल और क्यों पढ़ाई करूँ। बट ये जो 2 साल की जो पढ़ाई है ये आपको बहुत ज्यादा हाइक देने वाला है, ठीक है। आपका एवरेज पैकेज आपने देखा होगा यहाँ पर 17.2 LPA एंड दैट इज रियली वेरी गुड नंबर। तो आप ये नहीं सोचिए कि 2 साल फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा, आप ये सोचिए कि आप किस पोजीशन में होंगे आफ्टर 2 years और कितना कुछ नया यूनिक थिंग्स आपको सीखने को मिलेगा अबाउट मैनेजमेंट्स, okay, about leadership qualities in technical and management field, okay. So this is all about here recruiters. So I think this is done here. I have covered all the important points, okay. So I hope you got all the points. Thank you and don't forget to like, share and comment
थैंक यू।